The Print Off the Cuff. Presenting partner Edelweiss. Exchange partner NSE. Experience partner The Quorum. Pouring partner Six Brothers Mahura. All of us know he is one of our leading political figures at a very young age. And it's easy to say he's a chip of the old block, which he is. But he did inherit something, but he nearly lost it. And he has rebuilt it all. So he's had two lives. And he's been through the school of hard knocks. Chirag, why don't I, instead of talking more about this, leave the stage to you, and you explain your journey to all of us. Well, it's been a long journey. To be honest, my journey in politics started way back in 2013 when I was appointed as the chairman of the parliamentary board of my father's party. He was heading it as national president then. One important decision that was taken, uh, I don't know whether I'll be taking the credit by saying this, but then yes, in 2014, changing the alliance. My father was with UPA, and he was extremely comfortable there. He never wanted to come out of that alliance, and but at the same time, I was very adamant that we must change the alliance because that time, the way that time's prime ministerial candidate and today's prime minister Narendra Modi ji, his speeches were very impressive. He was talking about Sawa So Karor Deshwasi, and he wasn't talking about caste, religion, and he was talking about development. So as a youngster, I was actually attracted to what he was saying. So yes, I wanted that we should become the part of India. I remember saying this to my father for the first time, and his instant reaction was, "मैं जहर खा लूंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा." That was a very strong statement coming from him. Then I kept quiet for a couple of months, but then yes, situations कुछ ऐसी develop होती गई कि eventually हम लोग एनडीए का हिस्सा बने, and I'm really happy कि हम लोग बने. And things were fine for a couple of years until I lost my father. And then the actual struggle in my life started. After losing him, I lost him in 2020. And a year after that, there was a split in my party, eventually calling a split in the family also. And being a Nepo kid, I was thrown out of my party, I was thrown out of my family. And one after the other, everything was going against me. It was like, holding sand in your hand, and the more you try to grip it, the more you lose it. And that's exactly what was happening with me for a couple of years on a stretch, right from 2021 to 2024. One after the other, I lost my party, I lost my family, I lost my house. I was thrown out of my house. My luggage, everything was out on the road. And I had no place to go except my Nani's house. So those 3 years were very, very, very difficult. But then the only option that I had, and when I used to sit and think, so the only option that I had was either to be a crybaby and just sit and cry and just say that why did this happen to me? I've never done any wrong to anybody. Those typical things you start thinking. कि मैंने किसी का क्या बुरा किया कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है एंड स्टफ. या तो मैं बैठ के अपने नसीब को कोसता या फिर मैं लड़ता और चीज़ों को कंट्रोल में लेने का प्रयास करता. मैंने दूसरा विकल्प चुना. जो चीज़ें मैंने खोई, मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात थी seeing my mother, because with my father, my mother lived a life like a queen. And it was such a shame for me that because of me, she had to go through all this. So I remember the day when the whole split happened. So it was 13th of June 2021. And that night, my mother's a very, very strong lady, but that night for once I saw her very emotional. So I went to her, I hugged her, and I told her, "Mom, I don't know how, but I promise that everything that you have lost because of me, I'll get it back to you. But I don't know how.
this going to happen, but I'll work towards it. But today I feel happy and extremely satisfied that 3 years down the line, so this was on 13 June 2021, 9 June 2024, when I took the Shapath as one of the cabinet ministers in my prime minister's cabinet. That night, my mother came to me. She hugged me and she said, "कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया." So that was a nice moment for me. But then yes, those 3 years again were difficult. I didn't know पार्टी कैसे फॉर्म करते हैं. Being again nepo kid, कहते हैं ना legacy और सब आपको पला पलाया मिल जाता है. And that's exactly what happened with me. I mean, of course, I was one kid with सोने का चम्मच, चांदी का पालना and everything that you say. So I didn't know कि आप पार्टी कैसे फॉर्म करते हो, संगठन कैसे बनता है. So literally starting from the scratch and learning every bit in the process, I did that. But I'm happy that eventually it all paid off. I can't thank my prime minister enough because under new party, the first election that my party contested was in 2024. I managed to have Lok 100 Sabha. Lok Sabha. I managed to have 100% strike rate. That was secondary. But for my prime minister to have that belief in me that, we can give him 5 seats to contest, that was a big thing. I was a nobody then. I was the only member of parliament from my party, and giving 5 seats to a single member parliament's party, I think I have never seen this happening in coalition and in an alliance. I've seen numbers reducing, but increasing, I've never seen. So for my prime minister to have that belief in me, and I'm happy that I could live up to his expectations. So 5 out of 5. And then Vidhan Sabha, for once, our party is very strongly there in Bihar Assembly. We have 2 cabinet ministers there, 19 MLAs. Party is in expansion mode. I have an MLA in Jharkhand. I have 2 MLAs in Nagaland, and Delhi we contested. So party is doing good now. So this was the journey to summit. So tell me something. This is the city of Bollywood, right? And Bollywood, in various aspects of Bollywood, would have about 500 Nebo kids. Can you find me 5 who will start out by saying, "I'm a Nepo kid"? Right? He said it 3 times. In fact, if you called a Nepo kid, he'll stop speaking to you for the rest of your life, and his social media army will start attacking you for everything. Right? That's also a tribute to Indian politics, because people are much more upfront. Second, I'll tell you, we are the Ramvilas Paswan generation in terms of people being students of Indian politics. I started knowing his father maybe in late 80s. That is when the new parties were forming in Bihar and UP, and Congress party was declining. That's the first real election I covered was 89. I did something in 84, but 89. I remember seeing you as a kid. So Yeah. I'm 80s born. So yes, Yeah, I remember seeing absolutely, you. yeah. And I remember seeing you as a kid, and I think we'll stop. But his father, to understand him, you also have to understand where he's come from, because his father, if you see the speeches delivered in Parliament, in the debate, in the first vote of confidence that Vajpayee government faced, which Vajpayee lost in 13 days, the 13-day Sarkar, which Vittal Gadgil called 10-day wonder, right? The most stirring defense of Indian secularism in the history of Indian parliamentary debate was made by his father. And that speech, everybody should be taught in colleges, schools. And he said कि बाबर के साथ तो 40 आदमी आए थे, तो इतने करोड़ कैसे बन गए सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान? He said, आपने हमें मंदिर में नहीं जाने दिया, तो हमें कहीं तो जाना था. किसी ने कहा मस्जिद में आ जाओ, तो मस्जिद में चले गए, which I thought was such a wonderful exposition of the evolution of the subcontinent. Fantastic speech. And then I remember also that he had a change of heart, because Mr. Vajpayee was very persuasive when he joined that NDA, and then he resigned. And I met him the day he resigned. I said, "Kya hua Ramvilas ji?" And he said, he was telecom minister. He said, "वो बोल दिए कि हमको हटा दिया है,
हमको हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कहना था, हम उनकी पार्टी के नहीं हैं, हम गठबंधन के हैं, हम उनकी पार्टी के नहीं हैं। हमने उनको बोला, आप अपनी पार्टी के नेता को, मंत्री को टीवी पे हटा सकते हैं, लेकिन हम आपके सहयोगी हैं, आप हमको टीवी पे नहीं हटा सकते। सो इट वाज ऑन ग्राउंड्स ऑफ दैट सेल्फ रिस्पेक्ट that he left. Of course, we used to say from early 2000s onwards that no government can come to power in India without Ramvilas Paswan as its coalition partner, and that is something that sustains even now. Chirag, so that's your legacy. That said, uh, what are the three most important things that real politics has taught you? But politics has taught me. A, I think the most important thing is having that ability to work for people. And I think it gives you so much of satisfaction. I'm not saying it just for the heck of saying it and to sound nice and good. It actually gives you so much of satisfaction. If you can bring a smile on somebody's face, you go to bed with so much of peace in your head that you have done something good. I don't think there's any other job, there's any other profession which gives you so much of satisfaction, you know, when you do things in rural area for the villagers, for the poor section of the society. So that gives you a lot of satisfaction. So this is one thing. And then, of course, the politics within the politics. That makes you, I think, That's what makes our lives. yes, of course. That's the story for us. So yes, I mean, you learn a lot. कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है. Betrayals, backstabbing, काफ़ी सारी चीज़ें. पॉलिटिक्स कैसे आपको अपनों से दूर कर देती है. Had it not been for this profession, मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार कभी टूटता. ये प्रोफेशन इतनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आता है. सो आपको उस राजनीति के लिए तैयार करता है जहाँ पे यू आर फाइटिंग योर ओन पीपल. सो आपको मजबूत बनाता है. राजनीति ने इतना तो किया मेरे साथ. हम्बल करता है बहुत, ग्रेविटी से जोड़ता है बहुत. जब आप अपने आसपास इतने उतार चढ़ाव देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत स्थिर कर देता है. राजनीति ने मुझे बहुत संयम दिया, धैर्य दिया, which I was never. I was a very impatient guy. I was very, I used to react instantly. But this has taught me a lot of sanyam, lot of dhairya, lot of patience. So yes, politics has taught me that. But as she said, अभी तक I'm sane. मैं बिगड़ा नहीं हूँ और देखो बिगड़ूंगा नहीं. फैमिलीज में तो families in politics mostly get divided. It's a rare family that doesn't have divisions in politics. You can start with Gandhi's, you can go to Trump, any political family, because there's power. It has divisions. What have you learned dealing with really senior people like Amit Shah and Narendra Modi? One guru mantra from each. The dedication towards work. You know, I mean, before 2014, I have not experienced politics being 24/7 duty. Initially, it was actually taken as part time. You know, you used to work sometimes, you used to take off. But now, under their leadership, I have learned that you have to be on your toes 24/7. You can't have an off. And the kind of dedication, and that's when you deliver also. If you're not that committed, I don't think अगर मैंने ये चीज़ें नहीं सीखी होती और इतना डेडिकेशन मुझ में नहीं आया होता, तो मुझे नहीं लगता कि जो मैंने बाउंस बैक किया या जो चीज़ें वापस सुधरी हैं, शायद मैं नहीं कर पाता. वापस इन चीज़ों को इतने कम समय में सुधारने के लिए ये डेडिकेशन चाहिए था, जो मैंने मेरे प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से देखा, सीखा. कभी कोई बात कही जो आपको याद है, जो आपको लगा कि ये बात समझने की, सीखने की है? Either of them. पीएम साहब के साथ जब जब चर्चाएं रही हैं, ही इज़ बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग.
मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि जब मेरे प्रधानमंत्री ने, और ये दिस इज़ फॉर द सेकंड टाइम इट हैपेंड, पार्लियामेंट्री पार्टी की जब मीट होती है जहाँ पे एनडीए के सारे सांसद होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। सो आई रिमेंबर हिम सेइंग इट वंस, आई थिंक 4-5 साल पहले उन्होंने उस पार्लियामेंट्री पार्टी की, और अभी लास्ट मंथ उन्होंने दोबारा इस बात को रिपीट किया, जहाँ पे सारे सांसदों को उन्होंने ये कहा कि चिराग से आपको सीखने की ज़रूरत है, ये किस सिंसियरिटी के साथ, कितना सीख कर, कितना रिसर्च कर कर, पढ़ कर ये लोकसभा में आता है, डिबेट्स में हिस्सा लेता है। एक्चुअली जब वो हाजीपुर आए थे कैंपेन करने भी, एंड दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, उस वक़्त भी उन्होंने इन सारी बातों का ज़िक्र किया था। तो मेरे लिए ये एनकरेजिंग है कि प्राइम मिनिस्टर जिनके पास इतना है देखने, करने, सँभालने के लिए, अगर वो इस छोटी-छोटी चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आई थिंक ये मेरे जैसे जो कि राजनीति में अभी नए हैं, उनके लिए बहुत कुछ सिखाता है। At a very young age, when his father contested for the first time, this is their pocket borough, family pocket borough, Hajipur, he won by the largest margin in India's history, and that record sustained for a long time. And that was 49 years ago, 1977. Question in the back, please go ahead. Very good evening to both of you. Thank you for taking out time to Please chat tell with us your name and what you do. My name is Abhishek Nimbhorkar. I am in corporate strategy. मेरे दो सवाल है सर आपसे. First is कि historically we know that Bihar has been the politics in Bihar has been very caste based. You've also inherited a very strong base. But like in Bollywood now they're talking about making pan India movies and pan India stars. Is it possible to have a pan Bihar politician who appeals to all the masses there? And if so, how would you go about doing that, like building a pan Bihar presence? Second question is in very adjacent to the portfolio you handle, which is food processing. I have a question regarding agriculture. So India has traditionally been very protective of its farmers, and rightfully so, through MSPs, through subsidies, and import duties, etc. But recently, we're facing a lot of pressure globally with regards to trade, and I'm referring to US wanting to export their corn and maize. It's very evident that sooner or later we might have to open up our markets. So how do you think we can empower our farmers instead of taking a drastic decision? How we can gradually empower them that they become competent enough to compete in these open markets? These were my two questions. मैं इसमें एक लाइन ऐड कर दूं. The farmer from farm to fork, farm to plate, and it doesn't have to be the Indian plate, right? And that's where you have to convert what the farmer produces into something that endures, Right. and that can be carried. So how do you fill that gap? Is that what you're asking? That's right. That's right. Otherwise, you're not competitive. Otherwise, you produce tomato in tomato season and you have to dump it Right. on the highway. Abhishek ji, very interesting questions. Let me answer the second one first because it's directly related to my ministry. Because when you talk about agriculture, and as Sir said, rightly, until unless you don't process it, you will not be able to get it to Indian plate or any foreign plate. For that, processing is important. Now, what has happened? India being an कृषि प्रधान देश है हमारा, लार्ज आबादी हम लोग की किसानी से जुड़ी हुई है. ऐसे में देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन आवर कंट्री व्हेन वी वर फूड डेफिसिट. हमारे पास उतना अनाज नहीं था कि देश की आबादी को हम लोग खिला पाएँ. हरित क्रांति के माध्यम से, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने एक लंबा समय संघर्ष किया, प्रयास किया और सुनिश्चित किया कि वो वॉल्यूम हमारे पास आ जाए. नाउ द प्रॉब्लम वाज कि वॉल्यूम आ गया हमारे पास, पर वैल्यू पे हम लोगों ने नहीं काम किया जितना हम लोग को करना चाहिए था. मैं ये नहीं बोलूँगा कि पिछले 10-11 साल में हम लोगों ने बहुत कर दिया. मैं मानता हूँ कि प्रोसेसिंग का सेक्टर अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है, और ये पोटेंशियल है हम लोगों में प्रसंस्करण के माध्यम से. एंड ऑल्सो बिकॉज हम एज इंडियंस प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं शुरू से. वी हैव सीन आवर मदर्स, आवर ग्रैंड मदर्स, इन किचन, दही जमाते हुए, पापड़ बनाते हुए, अचार बनाते हुए हम लोगों ने देखा है. ऑल दिस इज प्रसंस्करण, ये सब प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है. ऐसे में मैं मानता हूँ कि ये सेक्टर जितना ज़्यादा ग्रो होगा,
तीन मेजर प्रॉब्लम जो हम लोगों के कंट्री में जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। पहला, किसानों की आर्थिक, जो आपके सवाल में था कि उनकी कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, उनको आर्थिक तौर पे हम और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू हैव दिस प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट दे डू बेसिकली इज दैट दे इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ योर प्रोड्यूस। और किसान जब उस चीज़ को ज़्यादा समय, उसके पास वो होल्डिंग पावर आती है, होल्डिंग कैपेसिटी आती है, तो वो औने पौने दाम पर उसको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने पास रख सकता है। वो तस्वीरें हम सबको विचलित करती हैं जब हम देखते हैं कि किसान टमाटर, आलू को सड़क पे फेंक देता है। वो इसीलिए, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं है, वो होल्ड नहीं कर पाता, और उसको या तो फेंक दे, खराब हो जाएँगे, नहीं तो जो भी औने पौने दाम पे बिक रहे हैं उसको बेचना पड़ता है। तो एक तो किसानों को ये आर्थिक तौर पे सशक्त करेगा, प्रोसेसिंग। दूसरा, जो हमारे देश की समस्या जिसका ज़िक्र अक्सर होता रहता है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगा ये। जब आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, जैसे मेरे मंत्रालय की एक स्कीम है, पीएमएफएमई की स्कीम है, छोटी स्कीम है, बट वो एक गाँव में रह रहे एक महिला पुरुष को एंटरप्रेन्योर बनाती है, उद्यमी बनाती है। वो अपने नीचे 2, 4, 5, 10, 50 लोगों को एक छोटा यूनिट एस्टैब्लिश करके उनको नौकरी देने के काबिल वो व्यक्ति बनता है। एंड एज माय प्राइम मिनिस्टर से कि आपको सिर्फ जॉब सीकर की भूमिका में नहीं, जॉब गिवर की भूमिका में आना चाहिए। मैं मानता हूं कि कार्पेट बॉम्बिंग of these processing units can really help us achieve that target. And third and most important, food wastage जो होता है, जो फूड बर्बाद होता है अनाज, उसको आप प्रोसेस करके आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के आप अनाज की बर्बादी को आप काफ़ी हद तक आप नियंत्रित कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि इस सेक्टर का, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग अभी इतना टैप ही नहीं कर पाए हैं, अभी भी इसको लेके अवेयरनेस, बैकवर्ड लिंकेजेस विद द फार्मर्स, क्रिएटिंग एफपीओज, उसके माध्यम से हम लोग को और ज़्यादा इसको व्यवस्थित करना है। एंड ऑल्सो टू रीच इंटरनेशनल मार्केट थ्रू दिस। माय प्राइम मिनिस्टर, उनकी सोच है कि भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभर कर आए, और ये क्षमता है हम में। हम लोगों के पास आज की तारीख में इतना अनाज है कि हम अपनी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए कई और देशों मैं की एक सेकंड फूड इंटरप्ट करूं आपको, सिक्योरिटी। एक सेकंड इंटरप्ट करूं। The agreement that India, Israel, UAE, and the US have signed, I2U2, it's a landmark agreement. In food that, corridor. India has been specifically listed as a food provider That's right. for the entire region. So India, in a way, is trusted with providing food surpluses for the entire region. That's Go right. ahead So we now. are creating that food corridor. So yes, जब आप विदेशों की बात करते हैं, एज आई वाज सेइंग, माय प्राइम मिनिस्टर, उनका सपना है कि इवेंचुअली एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभर कर आए, और ये क्षमता है हमें, और इसको हम लोग कर भी रहे हैं, निभा भी रहे हैं। बट मैं भी चाहता हूँ, और ये मेरा भी सपना है, और ये क्षमता अगेन है हम लोगों में, कि दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ ज़रूर होना चाहिए। इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ये पोटेंशियल क्योंकि है हम लोगों में, हम इसको अचीव कर सकते हैं, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। कमिंग बैक टू द फर्स्ट हाफ ऑफ योर क्वेश्चन, बिहारी। बिहार में मेरे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। आपने कास्ट डोमिनेंस की बात की, एंड विच इज़ राइट। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की राजनीति ही नहीं, सब कुछ प्रीडोमिनेंटली कास्ट के आधार पे निर्धारित होता है। ऐसे में जब मैं 2013 में जब मैं राजनीति में आया, और जब मैं बिहार जाता था, तो वहाँ पे मुझे ब्राह्मण मिलते थे, भूमियार मिलते थे, राजपूत मिलते थे, पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा। हम भी चुनाव में जाते हैं, हम भी चुनाव में जाते हैं, चुनाव देखने के लिए। जो मिलता है वो उसको पता है, जर्नलिस्ट को क्या चाहिए, पहले ही अपनी जाति बता देता है। बिल्कुल। कहीं और नहीं, बिहार में पहले ही बताता है, तो वो तो मुझे भी इसी बात की चिंता, मतलब परेशानी होती थी कि मुझे अपर कास्ट से लेके, दलित से लेके, पिछड़ा वर्ग से लेके सब मिलता था, बट कोई बिहारी नहीं मिलता था। और जब तक बिहारी एकजुट नहीं होंगे, हम एक साथ नहीं आएंगे, जब तक हम अपने आप को ही जातियों में बांट के रखेंगे, तो हम लोग, और हमें वो क्षमता है। आज आप बिहारी देख लीजिए, मतलब मैं शायद गलत बोलूं तो टोकिएगा, बड़े से बड़े मीडिया हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पे आपको बड़े बड़े पदों पे आपको बिहारी मिल जाएंगे। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ, सीएफओज आपको बिहारी मिल जाएंगे। नीडलेस टू से आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स आपको बिहारी मिल जाते हैं। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों? ये सवाल जब तक हम बिहारी अपने से नहीं पूछेंगे, तब तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जो हमारी क्षमता है। बट मैं मानता हूँ कि जिस दिन बिहारी एकजुट हो जाएगा,
तो पैन इंडिया नहीं, ग्लोबली भी हम लोग अपनी पहचान मजबूती से बना पाएंगे। यहाँ बैठे हैं बिहार के एक एंटरप्रेन्योर प्रवीण अग्रवाल जी। I will, Shailesh, a microphone will come to you, but before that, what we'll do is we'll mix some political questions with other questions. So there is a question that Arvind Kumar Sood asks. He's asking everybody's question. He says, does your alliance with BJP also make you a co-traveler in the Hindutva ideology of the Sangh Parivar? मैं किस में आस्था रखता हूँ, मेरा बिलीफ क्या है, मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत विषय है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। As politicians, we should talk only and only about development work. जिस दिन राजनेता धर्म की बातें करना बंद कर देंगे और जिस दिन धर्म गुरु राजनीति की बातें करना बंद कर देंगे, मुझे लगता है भारत एक बेहतर प्लेस हो जाएगा। दिक्कत ये है कि नेता और पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, हम लोग अपने काम से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम डिवाइड कास्ट इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ के रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपकी पूरी तरीके से ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि आप किस धर्म को मानते हैं, नहीं मानते हैं। मैं खुद आस्तिक हूँ, मैं मानता हूँ, अनलाइक माय फादर, वो नहीं मानते थे, बट मैं आई एम अ बिलीवर। आपके फादर तो पुराने सोशलिस्ट थे ना, वो तो पक्के लोहियाइट थे। बिल्कुल, बट जैसा मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत विषय होना चाहिए। इसकी चर्चा मैं सार्वजनिक मंच से करूं जिसके कोई मायने नहीं है, और जब नेता ये करते हैं तभी समाज में एक डिवाइड क्रिएट होता है जो नहीं होना चाहिए। So before Shailesh comes in, a follow-up trick question. So is your party, will you call your party, your part of NDA, is your party a Hindutva party or is it a secular party? So my party is a development की सोच वाली पार्टी। मैं सेक्युलर बोल के भी अपने आप को नहीं उलझाऊंगा। सेक्युलर वो सोच है, वो भावना है जो हर भारतीय में है और होनी चाहिए। आप यकीन मानिए सर, आपको कोई भारतीय ऐसा नहीं मिलेगा जिसके मन में कम्युनल भावना होगी। ये सिर्फ नेताओं के मन में होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। कोई भारतीय आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ये कहना पड़ेगा कि मैं सेक्युलर हूं। हम लोग बाय डिफॉल्ट सेक्युलर हैं, हम लोगों की परवरिश सेक्युलर हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू लड़का ऐसा होगा जिसके मुस्लिम दोस्त नहीं होंगे, या कोई मुस्लिम ऐसा होगा जिसके हिंदू दोस्त नहीं होंगे। तो ऐसे में इस बात को कहकर भी जब आप एम्फसाइज करते हैं कि यू आर सेक्युलर, तो आप उसको और ज़्यादा हैमर करते हैं जो कि आपकी भावना होनी चाहिए। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां मेरे राज्य को जाति धर्म से उठकर विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में मेरी पार्टी की सोच सिर्फ डेवलपमेंट है, ना कम्युनलिज्म, ना सेक्युलरिज्म, ना हिंदुत्व, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। शैलेश। शैलेश पाठक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं पटना में स्कूल में गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि शहरों में गरीबी को पचाने की शक्ति, और ये आप देखेंगे कि बिहार इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया। ज़्यादा जहाँ अर्बनाइजेशन है महाराष्ट्र तमिलनाडु, वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो शुड यू गेट अ चांस, हाउ वुड यू इंक्रीज अर्बनाइजेशन और improve the quality of our cities in Bihar? I think this is exactly what my aim and my mission is. मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, और जिसमें बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए द विजन दैट आई टॉक अबाउट, आप मुझसे मेरे बिहार से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का आप जिक्र करें, आई हैव अ सोल्यूशन टू दैट। मेरा बिहार एक ऐसा राज्य है, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, बट मैं बता सकता हूँ कि अभी जुलाई अगस्त में बरसात आएगी, आधा बिहार बाढ़ में रहेगा, आधा सुकाड़ में रहेगा, और तटबंधों का निर्माण किया जाएगा, फिर एक ही बरसात में कटाव शुरू हो जाएगा, और ये दशकों से चलता आ रहा है। इस पे जब तक परमानेंट सोल्यूशन पे हम लोग काम नहीं करेंगे, एंड इसका परमानेंट सोल्यूशन है इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। आपको नदियों को जोड़ने की योजना पे काम करना होगा, और ये देश भर में मुझे लगता है करने की ज़रूरत है। आई स्पोकन टू माई प्राइम मिनिस्टर अबाउट दिस, बट क्योंकि
फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग राज्य, ये हमारा पानी, ये उसका पानी, ये वो, बट हम लोग को नेशनल लेवल पे भी मैं मानता हूँ कि नदियों को जोड़ने की योजना पे हम लोग को काम करना चाहिए। बट टू बिगिन विद, माई स्टेट रियली नीड्स दिस। नदियों को जोड़ने की, बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है। जब आप नदियों को जोड़ेंगे तो आप सिंचाई की समस्या का भी समाधान करेंगे। बाढ़ के इलाके से सुखाड़ के इलाके में पानी को आप लेकर जाएंगे। तो ओवरऑल अब ये एक समस्या मैंने आपको बताई। मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था बिहार में हो सकती है, पटना में हो सकती है, दरभंगा में हो सकती है, समस्तीपुर में हो सकती है। अलग अलग क्लस्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बना के हम लोग उसको एक एजुकेशनल हब के तौर पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। बट दिक्कत क्या होती है कि जब चुनाव आता है तो वो कास्ट समीकरण पेपर पे ही बन जाते हैं। तो इवेंचुअली नेताओं को भी फिर ये लगता है कि हम काम करें नहीं करें, ये समीकरण मेरे पास है, ये जाति मेरे पास है, ये मेरा कागज़ पे मैंने चुनाव जीत लिया, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट माई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मीन्स दिस, एंड आज नहीं तो कल ये मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैंने मुलायम सिंह जी से सवाल पूछा था वॉक द टॉक में। तो मैंने कहा, आप इतनी बार जाति और धर्म की बात क्यों करते हैं राजनीति में? तो वो भी लोहियाइट थे आपके फादर की तरह। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम ये जाति और धर्म सबको निकाल देंगे राजनीति से, तो राजनीति बहुत क्रूर हो जाएगी। व्हाट ही मेंट वाज दैट इट विल बिकम ए हार्ड लेफ्ट, very heartless kind of politics. So identity is an important part of politics. So I now increasingly see it like that, that identity is very important. Look at what's happening in the US right now. Look at the lectures that J.D. Vance and Rubio are giving to Europeans. It just tells you that identity is back now. I absolutely believe identity is important, और तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब भेदभाव इसके आधार पे किए जाते हैं। अनुसूचित जाति की जब आप बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको स्केड्यूल किया गया। ये वो कास्ट हैं जो एक समय पे अनटचेबिलिटी का शिकार रहे हैं, और जाने अनजाने आज भी ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज भी कई बार देखने को मिलता है कि कोई एक दलित नेता अगर मंदिर जा रहा है तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। सो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस बेसिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और वो आइडेंटिटी के साथ जोड़ के ही एड्रेस किया जाएगा। My problem comes where everything boils down to identity and the whole politics starts revolving around that. And उसमें जो important developmental agendas issues होते हैं वो छूट जाते हैं। अब बिहार जैसा इन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन सबसे कम है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जाति की राजनीति वहाँ पे हो रही है। और हकीकत है, भारत गांव में बसता है, और जब तक हम लोग गांव और शहर की दूरी को कम नहीं करेंगे तब तक हम लोग विकसित भारत, जो मेरे प्रधानमंत्री जिसकी बात करते हैं 2047 तक, वो हम कर ही नहीं पाएंगे जब तक गांव को शहर से नहीं जोड़ा जाएगा। आपकी बात ठीक है मदन बहल। आप उसके पहले मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, वो आप चाहें तो आप उसको यू कैन कीप ए स्ट्रेट फेस और यू कैन इग्नोर इट, कि बिहार हैज़ वन मोर प्रॉब्लम, दैट द gentleman who's been the leader of Bihar now for almost 20 years, barring a few months break, he doesn't believe in the cities and he doesn't believe in urbanization. And I was glad to see now, this time, that at least some development is coming up, urban development in and around Patna. For a long time, it was our impression that he resisted that, but you don't have to nod to that also. You can let it pass. No, I will, because ये सवाल मेरे भी मुख्यमंत्री जी से रहे थे। 2020 में जब मैंने अकेले चुनाव लड़ा था, इन्हीं सारे सवालों को उठाते हुए मैंने चुनाव लड़ा था कि क्या कारण रहा है कि बिहार ने निरंतरता में एक मुख्यमंत्री के रहते हुए भी विकास वहाँ तक हम लोग नहीं जा पाए। बट इसको जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना, ये समझना हम लोग के लिए ज़रूरी है कि बिहार हमें कैसे मिला था। 90 का वो दशक, आज भी लोग कहते हैं कि भाई आप लोग कब तक जंगल राज की याद दिलाएंगे। जंगल राज की याद को दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि उसने बिहार को बर्बाद करके छोड़ा था। जब कोई समतल ज़मीन होती है ना, उसके ऊपर आप इमारत खड़ी करना आसान होता है, बट जब आपको खाई मिलती है तो आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी तो पहले उस खाई को भरने में लगती है, और उसके ऊपर तब आप जाके इमारत खड़ी करते हैं। मैं मानता हूँ लंबा समय लगा, 2 दशक लगे, बट आज की तारीख में बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है
मेरे खुद के सवाल होते थे ये कि बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं आते? कैसे आएँगे जब कनेक्टिविटी ही नहीं थी, सड़कें ही नहीं थी, वो लॉजिस्टिक्स ही नहीं वर्कआउट होते, बिजली नहीं थी बिहार में। एक समय ऐसा था जब दिन में 1 डेढ़ घंटे बिजली आती थी तो लोग खुश होते थे, आज अगर 1 डेढ़ घंटे जाती है, तो लोग सवाल उठाते हैं। तो जहाँ पे बिजली नहीं थी, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो वहाँ पे औद्योगीकरण होना संभव ही नहीं था। बट आज मैं मानता हूँ कि बिहार इज़ रेडी फॉर दैट एंड अगले 5 साल बिहार के लिए एक गोल्डन एरा के तौर पे होंगे। Thank you, Madan. Madan Behel, founder of Ed Factors. इस शहर में सारे कॉर्पोरेट इंडिया में जिसको कोई समस्या होती है वो डॉक्टर बहल के पास जाते हैं, डॉक्टर एड फैक्टर्स के पास जाते हैं। थैंक यू। चिराग भाई, कुछ पिछले क्षणों में आपने मेरे सवाल का जवाब थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन फिर भी रिपीट करना चाहिए बिकॉज ये ज़रूरी है। जब मैं स्टेट्स के बारे में सोचता हूँ देश के, तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे ज़्यादा बिहार के बारे में ही होता है हमेशा, कि ये एक प्रतिभाशाली लोगों का दुर्भाग्यशाली प्रदेश है। सब कुछ था, तक्षशिला भी थी, नालंदा भी था, गुप्ता भी थे, सब कुछ हुआ, मगध भी था, पाटलिपुत्र भी था, पतंजलि भी था। जो कुछ इस देश की धरोहर हम आज तक याद करते हैं, वो बिहार से ही शुरुआत हुई थी। फिर इस प्रदेश की विटंबना ऐसे बढ़ती गई और पिछले 10-20 सालों में विकास ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो डेवलपमेंटल लैग शायद और बढ़ गया है। तो आप तो पॉलिटिशियन की तरह बोलते ही हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यक्रम दैट है वाज़ अ कॉम्प्लीमेंट और पिछले कोई ठोस कार्यक्रम है जिससे, जैसे मोदी ने I गुजरात think में काम, he knows how to weigh his words. He also teaches many others how to weigh their words. तो कोई ठोस कार्यक्रम है कि मैं 5-7-10 सालों में, ये मेरा विजन है बिहार का, और मैं ये करना चाहता हूँ जिससे एक आम बिहारी जब यहाँ पर आता है तो अपना सरनेम छुपाए नहीं, कुमार नहीं बन जाए। वो सब जगह मैं कोशिश देखता हूँ। मेरा बिहार एक ऐसा राज्य जो लोकतंत्र की जननी रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य जो एक से एक महापुरुषों की धरती रहा है। गौतम बुद्ध की धरती है वो, भगवान महावीर की धरती है वो, मेरी माता सीता की धरती है वो, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है। नालंदा, जब शिक्षा के महत्व को देश तो भूल जाइए, शायद दुनिया ने नहीं समझा था, उस वक़्त हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी और दूर-दूर से लोग आते थे वहाँ पे शिक्षा हासिल करने। ऐसे में इतना गौरवशाली इतिहास जिस राज्य का रहा हो, उस राज्य को इस बुरी परिस्थिति में लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ज़िम्मेदार होंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रही होगी कि आज बिहार इस कगार पर पहुंचा। और एक समय तो ऐसा था कि जब बर्बादी पर ही था मेरा बिहार। बट ऐसे में बिना इतिहास में गए हुए कि किस वक्त किसकी क्या गलती थी, बट कुछ तो गलत हुआ था, वो राजनीतिक स्तर पे हुआ हो। एंड ऑफ कोर्स राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है राज्यों को नीति के आधार पर आगे लेकर जाने की, और कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपने पूछा कि अगले 5 साल में, ऑफ कोर्स आई डू हैव अ वेरी क्लियर कट रोड मैप फॉर 5 इयर्स, जहाँ पे मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन है जिसका मैंने जिक्र किया, जिस पे अगले 5 सालों में 5 ऐसे बिंदु हैं जिस पे मैं बहुत ध्यान केंद्रित करके कार्य कर रहा हूँ, जिसके 2 उदाहरण मैंने दिए। एक एजुकेशन का मैंने दिया कि एजुकेशनल हब, बिहार का एक बहुत बड़ा राजस्व बिहार से बाहर जाता है। किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है रेवेन्यू जनरेशन के नए नए सोर्स आपको निकालने होंगे, और जिसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है। मैंने कोटा का जिक्र किया, एक बहुत बड़ी राशि हम लोग की कोचिंग फ़ी के नाम पर हमारे राज्य से बाहर जाती है, उसको हम लोग को रहकर रिटेन करना होगा, ना सिर्फ इस सोच के साथ बट ऑल्सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन माई स्टेट। इस पे काम करेंगे। नदियों को जोड़ने की ये एक और समस्या है जिसमें मेरा बिहार लंबे समय तक प्रताड़ित रहता है। इस पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पे, और अगले 5 साल इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके मैं काम कर रहा हूँ। रूरल हेल्थ फैसिलिटीज़ को डेवलप करना होगा। आज की तारीख में मतलब आई डोंट नो,
मेरे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। गाँव में डायलिसिस की कोई सुविधा ही नहीं है। लोगों को पटना आना पड़ता है या बड़े शहर जाना पड़ता है। सोचिए कोई किडनी का अगर पेशेंट है और उसको हफ़्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराना है, कितना मुश्किल है उसके लिए वहाँ से यहाँ तक आना। ये बेसिक चीज़ें इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ये हम लोग को वहाँ पे क्रिएट करके देनी होगी। चौथा, मेरी खुद के मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रोसेसिंग, जिसमें किसानों की आप बड़ी मदद कर सकेंगे। पाँचवाँ, अगेन जो मैं बोलता हूँ कि आपको राजस्व बढ़ाना होगा, रिलीजियस टूरिज़्म। मैं मानता हूँ कि मेरे राज्य में एक तो परसेप्शन का शिकार है, जो बिहार जाता ही नहीं उससे पहले ही परसेप्शन बन जाता है। मैं अपने मंत्रालय के माध्यम से इंडस्ट्री लीडर्स को मैं आग्रह करता हूँ कि भाई बिहार में आप इंडस्ट्री लगाइए, तो पहले ही एक रेजिस्टेंस आ जाता है कि बिहार में सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इन सारी चीज़ों को लेके परसेप्शन का शिकार रहा है। तो जब तक टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा, लोग जाएँगे नहीं, देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, जिसमें रिलीजियस टूरिज़्म मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। हर धर्म, जैसा मैंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, मैं आधा सरदार हूँ, मेरी माँ सरदारनी है। मैं जानता हूँ कि सरदारों के लिए कितना महत्व वो रखता है। बुद्ध जितने लोग हैं, गौतम बुद्ध की वो धरती है, जैन समाज से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पे। मेरी पिछली लोकसभा जमुई में वहाँ पे लछवाड़ आता है, जो भगवान महावीर की जन्मस्थली माना जाता है। वहाँ पे 2600 साल पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमा है वहाँ पे, जो जैन समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्व की वो है। कहा जाता है कि भगवान महावीर के भाई नंदीवर्धन जी ने उसको वहाँ पे स्थापित किया था। मेरी माता सीता की धरती, आज अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो के उस क्षेत्र का जिस तरीके से फाइनेंशियली वो स्टेट वो एरिया अपने आप स्टेबल हुआ है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को रेवेन्यू जनरेट जब तक नहीं करेंगे, पर कैपिटा इनकम हम लोग नहीं बढ़ा पाएंगे, और जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी स्टेट डेवलप नहीं करेगा। सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन के साइमल्टेनियसली बेसिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये प्रायोरिटी में है मेरे। Sunil Mehta, and then we'll go right in the back. The lady has a mic, and then right in the back. Sunil, and before Sunil gets up, you talked about revenue generation. So does the P word ever feature in that thinking? P for prohibition? नहीं, हाँ, और अभी उसको लेके थोड़ा अब खैर मैं बोलूँगा तो फिर विवाद भी होगा, बट मैं मानता हूँ कि इस पे समीक्षा की ज़रूरत नहीं, है। हर हम पार्टी का अलग पोजीशन है हाँ, उसके नहीं ऊपर बिल्कुल, मेरा। और नहीं, इस पे होनी चाहिए हाँ। बिकॉज़ हम लोगों ने लगा तो दिया, शराबबंदी कर तो दी। आप अपना रेवेन्यू ट्रांसफर कर रहे हैं आपके एडजॉइनिंग स्टेट्स को। नहीं, नॉट ओनली दैट, बट जिस सोच के साथ आपने किया वो नहीं पूरी हो पा रही है ना। राइट। आज भी बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। आज जिस तरीके से बॉर्डरिंग एरिया से आयात होने लगा है, बस्ते में वो बिल्कुल। डाल के ला रहे हैं। आपकी सारी रेवेन्यू यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ नेपाल में जा रही है। सोच अच्छी है, सोच से मैं सहमत हूँ, बट मैं ये भी मैं मानता हूँ कि कड़े कानून बनाने से चीज़ें धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। जागरूकता भी फैलाने की ज़रूरत है। लोगों को शिक्षित करना होगा प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। मैं जनसंख्या को भी लेके मैं ये मानता हूँ कि कभी आप एक दिन कानून ले आइए और बोलिए कि लोग उसका पालन करने लग जाएँ। नहीं, लोगों को जागरूक करना होगा, और ये ऐसे विषय हैं जो जन आंदोलन से ही सफल हो सकते हैं, कानून बनाने से। और कानून से जनसंख्या, एक देखा ना, चाइना ने कंट्रोल करके देख लिया, फंस गए, क्योंकि कानून से आप कम करा सकते हैं लेकिन कानून से आप बढ़वा नहीं सकते। जी। तो कानून से आप ये कह सकते हैं कि एक से ऊपर बच्चा नहीं पैदा करेंगे, लेकिन जब आप बोले 2 या 3 तो फिर लोग कहेंगे कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, अब क्या कर लेंगे। सुनील, तो आपकी Thank बात you. बिल्कुल ठीक है, and आई एम ग्लैड दैट you are open-minded about this, because I think the state has got into an ideological trap over this one issue, and it's losing revenue, and people are buying illegal stuff. Sunil? Thank you, Shekhar. Chirag ji, absolutely inspirational what you've just spoken. Two quick questions. You have a long political career ahead of you, and God bless you, and we want you to be there. If at any point of time you become the finance minister of India, Vitra Mantri, what will be those 2 things that you would want to do for India's economic development, which you think कि अभी जो भी हो रहा है उसमें अभी हमारे
विजन में नहीं है एनडीए की सरकार में, एंड देयर आर टू थिंग्स दैट कीप ट्रबलिंग यू कि ये हम करना चाहिए। आप दिल खोल के बात करिए आज उसके बारे में। आप तो उसके आप मुझे पंप कर देंगे, दिल खोल के बात कीजिए, वापस कैबिनेट में भी जाना है। नहीं, इससे इससे देश को प्रोत्साहन मिलेगा कि ये चीज करनी चाहिए। सो इट विल बी ऑब्वियसली गुड फॉर इंडिया। सेकंड, यू आर अ यंग पॉलिटिशियन. What we see in a parliamentary democracy, what happens in the parliament and which we've been witnessing for quite some time, what should we be doing differently for the parliament to function as you would want it to function? Like Mr. Shekhar Gupta said, कि जब आप, your father gave that speech in the parliament, how do we get those speeches back in the parliament? Please listen to that speech. We have a series that we carry every weekend, every Sunday, called Great Speeches. So we pick out great speeches of Indian history from all parties, starting with 1947. And that speech ranks among those great. You will find speeches by Gandhi, by Ambedkar, by Minu Masani of the right. Every week there is one, and his father's speech ranks right up there. We want Chirag Paswan also to give a similar speech. Well, एंड आई एग्री। मैं खुद पुरानी स्पीचेस निकाल निकाल के वाजपेयी साहब की, सुषमा जी की, ये सारी स्पीचेस, एंड नीडलेस टू से माय फादर, मैं खुद बहुत सुनता हूँ, एंड जो मुझे काफ़ी कुछ सिखाता है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, एंड माय लैक ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर ये बहुत ज़्यादा है। मुझे फाइनेंसेस नहीं समझ में आते। टू एन एक्सटेंट मेरी जेब में 1 रुपया कभी नहीं मिलेगा आपको, मुझे हैंडल ही नहीं करना आता। आज भी जब घर से निकलता हूँ तो मॉम से 2000-5000 लेके निकलता हूँ जितने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे फाइनेंसेस नहीं समझ में आते, बट आई डोंट नो एज़ अ लेमैन, या जितना मैंने समझा है ना, जो हम लोग को पता नहीं है करना पॉसिबल है नहीं है। हमारी आबादी एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक व्यवस्था के अंदर आएँ, इस पे हम लोग को काम करना चाहिए। आई थिंक विद 1.4 बिलियन पीपल, आई मीन उसमें जितने ज़्यादा लोग आएँगे, डेफ़िनेटली येस, उसके लिए आपको रेट्स बहुत गिराने होंगे। कंसंट्रेट करने की बजाय अगर हम लोग वॉल्यूम पे काम करें, टैक्स रिडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था के अंदर हम लोग लेकर आएँ। मुझे नहीं पता जो मैं कह रहा हूँ ये सही है नहीं है, बट कई बार जब मैं सोचता हूँ ऐसी चीज़ें तो ये मेरे ज़हन में आता है कि हम लोग को ज़्यादा लोगों को इसके दायरे में लाना चाहिए, और उससे यकीनन एक तो व्यवस्था और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगी। जो घोटाले, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें होती हैं, आई थिंक विद ऑफ कोर्स ये अब जितनी चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं, यूपीआई एंड ये सब काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज पहले से हुई हैं, बट मैं मानता हूँ कि इस दायरे को अगर हम लोग और बढ़ा सकते हैं तो हम लोग को करना चाहिए। ये मेरी सीमित सोच है फाइनेंस के बारे में। बट हाँ, पॉलिटिक्स, जब आपने पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, यस, मैं मानता हूँ कि वो एरा जहाँ पे हेल्दी डिबेट्स होती थी और हर कोई अपनी बातों को खूबसूरती से रखता था, आई मिस दैट। आई हैव सीन इट थ्रू माई फादर, और क्योंकि मैं पुरानी स्पीचेस काफ़ी देखता हूँ, पुरानी डिबेट्स में काफ़ी देखता हूँ, और मैं खुद में इन चीज़ों को मैं मिस करता हूँ कि ये आज क्यों नहीं होती हैं। मैं मानता हूँ ज़िम्मेदारी दोनों तरफ से है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। मैं कतई सारी चीज़ें विपक्ष पे डाल के बोलूँगा कि भाई दोनों तरफ से हम लोग को प्रयास करना चाहिए, दोनों तरफ से ओपन होना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि इस मंच का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। कड़े से कड़ा विरोध भी अब मर्यादित शब्दों में रहकर इस मंच पे कर अपनी बातों को देश की एक बड़ी आबादी तक या अपने फॉलोअर्स सपोर्टर्स तक आप पहुंचा सकते हैं। ऐसे में विपक्ष को भी समझना होगा कि सिर्फ सदन को स्थगित करा देने से वो अपना समय भी लूज कर रहे हैं। अभी रिसेंट जो हुआ जिसमें नेता प्रतिपक्ष, मैं जिद बोलूँगा बिकॉज कई बार चेयर ने उनको टोक दिया था, और ये जिद ही थी उनकी कि मैं बोलूँगा तो इसी विषय पे बोलूँगा। आपने खुद का बाकी सबका समय आपने ले लिया। मुझे ताज्जुब है, टीएमसी जैसी पार्टी, आपके यहाँ चुनाव हैं, ये समय था आपके पास इस मंच का इस्तेमाल करके अपने वोटर्स तक संदेश पहुंचाने का। राहुल जी के चक्कर में उन लोगों ने भी, जबकि स्पीकर ने उनके नाम को बुलाया था, उन लोगों ने भी नहीं बोला। तो ऐसे में इस मंच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
सबकी होनी चाहिए, बट जितनी सहजता से मैं ये कह रहा हूँ, इतनी सहजता से इनसाइड ऐसा होता नहीं है। Those of you who might So, not know Sunil, I've known Sunil since he used to be at Citi, which was some time back, and then he was at AIG. He worked with Frank Wisner, who was former US ambassador to India. So he was Frank Wisner's ambassador to India for a long time. Frank unfortunately passed away last year. And then he was chairman of Punjab National Bank and IndusInd Bank and Yes Bank. So if you find any broken bank, or any bank which is about to be broken, you know, Sunil Mehta is available because he specializes in helping fix broken banks. Go ahead, ma'am. yeah, good evening, Mr. Paswan. I'm a very, so Amita Maheshwari, I'm a very proud but very pained Bihari. And, I did my engineering from Patna, I did my XLRI in Jamshedpur, which used to be Bihar. But there was no opportunity. I always thought that, maybe sometime I'll go back and work. I was CHRO for Star TV and Walt Disney for Asia Pacific, and so I have two questions. One is, when we look at UP and Bihar were part of the Bimaru state, but I see a lot of will and discipline and really, chahat ki kuch change karna in UP, and where it is come in the last 5 to 6 years. I don't see that in Bihar, even after Nitish Kumar, who is our alum from my college, has been the chief minister, and it's been painful to really see the state which we love not really even going on the track of saying, okay, in 5 Ma'am, years if we you will can do. keep the question And the short. second thing is that, you being the young leader, should you not kind of, focus on Bihar to really make that, leave a legacy and create that change? Then look at, Absolutely portfolio right. this And thing, yeah. जिसका आपने ज़िक्र किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं मानता हूँ कि जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच को रखता हूँ, वो दिल्ली में रहकर अब तीसरी बार का सांसद बन गया हूँ, मुझे समझ में आता है कि दिल्ली में रहकर नहीं होगा। इवेंचुअली आई विल हैव टू मूव बैक टू माय स्टेट इन चीज़ों को धरातल पर लाने के लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ योर क्वेश्चन, जहाँ पे आपने चिंता ज़ाहिर की, बिहार को ना राजनीतिक दृष्टि से भी समझने की ज़रूरत है। मैंने भी बहुत सवाल उठाए हैं, मैं भी हमारे मुख्यमंत्री से मैं बहुत लड़ा हूँ। 2020 अकेले मैंने चुनाव लड़ा था, जो कि बाद में कहा भी गया कि मेरी वजह से उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर आई और ये सारी बातें, क्योंकि मुझे भी इन सारी बातों का तब गुस्सा- आपने बोला था कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। हाँ, नहीं, एक्चुअली वो प्राकरण क्या हुआ था, ये भी बता देता हूँ। तो ये हुआ क्या था कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था और बार बार मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इतनी राजनीतिक बुद्धि थी मुझ में कि मैं नहीं करूँगा, मैं पार्ट ऑफ द अलायंस नहीं हूँ, तो मैं क्यों इस्तेमाल करूँगा। बट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ऊपर ये क्वेश्चन आता था कि जेडीयू कह रही है कि आप प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन वन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पुराना बॉलीवुड का कोई दौरा मुझे चढ़ा होगा, तो उसमें बहुत ड्रामेटिक होकर मैंने बोल दिया था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों का इस्तेमाल करने की, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग में। प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो चीर के दिखा दूंगा, दिल में प्रधानमंत्री हैं। अब ये चीज़ वहाँ से द नेक्स्ट डे आई सी इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर, मेरा एक वो कार्टून, वो कैरिकेचर टाइप का कुछ बना हुआ है जिसमें आई एम लाइक हनुमान और दिल चीर के उसमें प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। तो ये वहाँ से ये हनुमान वाला प्रकरण पूरा शुरू हुआ। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने भी सवाल उठाए थे, बट जितना फिर मैंने अध्ययन किया कि क्या कारण रहे हैं, क्या चीज़ें गलत गई हैं बिहार के साथ, उसमें एक और बहुत बड़ा कारण मुझे आइडेंटिफाई जो मैंने किया, जो आज मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। मैं मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में डबल इंजन की सरकार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब तक दो सरकारें एक सोच पे नहीं होती, विरोधाभास में बहुत नुकसान होता है राज्यों का। और ये इसका मैंने अनुभव किया। मेरा राज्य लंबे समय तक, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार, देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब निरंतरता में 27 साल तक अलग अलग सरकारें थीं। 2000 का ही दशक देख लीजिए कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी, और जैसे ही 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई।
तो इन सरकारों ने, अलग अलग सोच वाली सरकारों ने भी बिहार का बहुत नुकसान किया। एंड इज़ द रीज़न व्हाई आई से कि अगले 5 साल बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पे होंगे, क्योंकि अब एक सोच वाली सरकार मिली है। मेरे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले, और ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक साल में कोई प्रधानमंत्री 12-13 बार एक राज्य में जाए, और जितनी बार वो गए हैं वो हज़ारों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहारियों के लिए समर्पित करके आए हैं, और सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो चीज़ें हो रही हैं। एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, आज मेरे बिहार में 2 एम्स हैं। जिस तरीके से एयरपोर्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि अब वो चीज़ें, वो सपोर्ट केंद्र से मिल रहा है, राज्य में वो तत्परता है उस लाभ को लेने की। तो मैं मानता हूँ कि ये 5 साल ज़रूर बिहार को आगे लेकर जाएँगे। बट हाँ, जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। वो एक बिहारी होने के नाते मुझे भी चुभता है। Good evening, sir. Myself, Dr. Pradeep Khotkar. I am from Marathwada, Jalna district. सर, अब बिहार की बात हो गई, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के राजकीय और सामाजिक संदर्भ देखते हुए आपके पास महाराष्ट्र के लिए आपके पार्टी का कोई संगठनात्मक मॉडल आपके पास तैयार है क्या? और क्या आपकी रणनीति है महाराष्ट्र में संगठन बढ़ाने के लिए? मैं थैंक यू सर। चाहता ज़रूर हूँ, जैसा मैंने कहा कि मेरी पार्टी आज की तारीख में एक एक्सपेंशन मोड पे है। बिहार से निकल कर हम लोग अलग-अलग राज्यों में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया, झारखंड में मेरे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं, दिल्ली में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र भी मैं मानता हूँ, यहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमति रखने वाली एक बड़ी आबादी है। और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र में भी मेरी पार्टी का विस्तार हो। जब मैं बात करता हूँ डिस्क्रिमिनेशन की, या जब आपको जाति के आधार पर बाँटा जाता है, धर्म के आधार पर बाँटा जाता है, तकलीफ़ मुझे अब इस बात की और ज़्यादा होती है कि वो डिवाइड और बढ़ते जा रहे हैं। नए-नए सेगमेंट्स उसमें आ रहे हैं। क्षेत्र के आधार पे आपको बाँटा जा रहा है, भाषा के आधार पर आपको बाँटा जा रहा है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जब तक इंक्लूसिव सोच वाली आप राजनीति के साथ नहीं आएँगे, जब तक सबका समावेश करने की सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लोग वो विकसित भारत के निर्माण में हम लोग पीछे रहेंगे। ऐसे में उस सोच के साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि महाराष्ट्र में भी मेरी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अपना विस्तार करे। विधानसभा में यहाँ पर भी मेरे विधायक हों, यहाँ से भी हमारे सांसद जीत के जाएँ, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। और मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ व्हेन आई से दिस। Hello, Chirag ji. I'm Kanika Kapoor. I'm going to state this with a straight face. I help people manage their finances. It's very heartening to see someone as humble as you and with such a development mindset. I feel like our country has a future. But here comes my question and my opinion. One thing that really petrifies me is that somewhere in this development roadmap, we missed clicking on good health. We cannot deny that we are the diabetic capital of the world. Is there any plan to align good health along with our future plans for the food processing ministry? एब्सोल्युटली। एंड ये आपने मतलब मुझे अच्छा लगा ये सवाल सुन के, बिकॉज मैं खुद आई एम हेल्थ कॉन्शियस, और मैं चाहता हूँ कि देश अपने स्वास्थ्य की चिंता हर किसी को करनी चाहिए। एंड एज मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वेन एवर आई इंटरेक्ट विद द इंडस्ट्री, मैंने हर मन से उनसे आग्रह किया है कि हम लोग हेल्दियर सेगमेंट ज़रूर लॉन्च करें। आपका जो भी प्रोडक्ट हो, उसका एक हेल्दियर वेरिएशन हम ज़रूर लेकर आएँ। इवेंचुअली इट्स अप टू द कंज्यूमर कि वो क्या लेना चाहते हैं, बट विकल्प के अभाव में हम लोग एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कैलोरीज हम इनटेक करें, ये गलत है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस समस्या को मेरे प्रधानमंत्री ने भी एड्रेस करना शुरू किया है, बिकॉज ओबेसिटी कम्स विद लॉट ऑफ बीमारीज ऑल्सो। और मैं मानता हूँ कि कई बार कई बीमारियों की जड़ ही मोटापा होती है। तो ऐसे में उसको आपको अभी से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यंगर जनरेशन में ये ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई मन से कहा कि हम क्या 10% तेल का इंटेक
हम लोग कम कर सकते हैं क्या अपने खाने में। ये जागरूकता वाले विषय हैं, बट एज अ मिनिस्टर मैं इंडस्ट्री को बहुत पुश करता हूँ और मैं फोकस करता हूँ कि हम लोग हेल्दियर सेगमेंट्स लाएं। फसाई के थ्रू हम लोग नॉर्म्स भी रेगुलर मॉनिटर करते हैं कि रेगुलेशंस भी इतने स्ट्रिक्ट हों ताकि किसी को स्वास्थ्य पे किसी को नुकसान ना पहुंचे। Actually, FSSAI labeling has now become very strict and it's quite useful. Lovely to hear you. My name is Mukesh Malhotra. I represent the Wakefield Group of companies. We're in food processing. You're our minister. So I want to- anybody who's eaten cornflakes in my generation knows Wakefield. Thank you. So basically, I have 2 points. One, I'd like to know what is the focus of the food processing industry at this point in time, and what is the kind of actions that we take, because one of the most important things we need is the cold chain, and India really suffers from a very underdeveloped cold chain. So what would the food processing industry, I mean the ministry, do for us for developing the cold chain, and what are your focus areas? ओके, यस। सो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को स्थापित करने की, बट मैं मानता हूं कि सरकारों के पास अपनी सीमाएं भी होती हैं यहाँ पर, और इसीलिए मैंने निरंतरता में इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट किया है, रेगुलरली मैं कर रहा हूँ। उसके पीछे की सोच यही है कि इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड आना होगा। हम लोग कई बार, मैं जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ रहा जब मैं ये कह रहा हूँ, बट हम लोग कई बार ना सरकार के ऊपर सब डाल के छोड़ देते हैं कि सरकार करे, सरकार करे, सरकार करे। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीति बनाना, पॉलिसीज बनाना हम लोग की प्राइम जिम्मेदारी है। और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करते हुए मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कहीं आपके बॉटलनेक्स हों, कहीं चैलेंजेस हों, आप मुझे बताइए, मैं वो क्लियर आउट करके आपको दूंगा। मैं जब मंत्री बना नया तो उस वक्त जीएसटी को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न था, और मैंने जितनी बार भी इंडस्ट्री से इंटरेक्ट किया, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर जीएसटी में आता था 12-18% के दायरे में। मुझे खुशी है इस बात की कि अब उसमें से अधिकांश चीज़ें 5 या 0% पर हम लोग ले गए हैं। मैं आगे भी जितने बॉटलनेक्स होंगे मैं सारे क्लियर करके दूंगा, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें शेयर करनी होगी। हम लोग कई बार CSR, मैं कल एक इवेंट था वहाँ पे CSR को ही लेके थी, उसमें भी मैंने ये बात बोली कि हमें एज इंडस्ट्री अपनी जिम्मेदारियों को भी उतनी ईमानदारी से निभाना होगा। हम लोग 1 रुपया एज कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम दे रहे हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना होगा। कई बार हम सिर्फ चेक दे देते हैं, एक ही पार्क का बार बार सुंदरीकरण हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हुआ जा रहा है, हम खुद नहीं ध्यान दे रहे हैं, जबकि इस पैसे का ह्यूज अमाउंट हम लोग इस व्यवस्था के निर्माण में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी अपने साथ, जब आप अपने एक्सपेंशन प्लान्स जब लाते हैं, उसमें अगर 2 यूनिट्स अगर हम लोग इसकी सोच के साथ अगर हम लोग बनाने लगें, तो इवेंचुअली across the length and the breadth of the country, it is a big country. हमें ज़्यादा लोग चाहिए जो साथ में आके, एंड दैट्स व्हाट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री एंड सरकार की। तो मैंने हमेशा इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये प्रयास किया है। आई नो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जैसा मैंने कहा कि हमारा फोकस लंबे समय पे वॉल्यूम पर ही था, वैल्यू हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। पिछले 11 सालों में हम लोगों ने FDI 100% इसमें ओपन किया है। 7.33 बिलियन USD का हम लोग निवेश इसमें लेकर आए हैं, जो कि मैं मानता हूं कि एक अच्छा वो है। बट यस, अ लॉन्ग वे टू गो, बट टुगेदर। फर्स्ट लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू। मैं आपका चेहरा देखता हूँ। Mr. Praveen Agrawal है, because he didn't mention his name, so I'm. मैं आपका चेहरा मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रवीण अग्रवाल, पार्ट ऑफ वेदांता ग्रुप। मैं आपका चेहरा देखता हूँ। जब से मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरे को बिहार याद आता था। क्या बिहार था? और चूँकि मैंने सारी जीवनी मैंने बिहार में बिताई है, मेरा पूरा परिवार बिहार में रहा है। मेरे भाई साहब बिहार को बहुत प्राउड फील करते हैं। अपने सोशल मीडिया में भी काफ़ी उसको बिहार को आगे लेके आने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में 2 मेरे क्वेश्चन हैं। किस दिन बिहार का युवक बाहर जाके प्राउड से बोल सके कि मैं बिहारी हूँ? नंबर 1। नंबर 2,
जो बिहार से निकल के बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के। मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऐसा एक दिन आए कि लोग, बाहर के लोग बिहार में आकर के रोजगार लें, न कि बिहार के लोग बाहर जाके रोजगार लें। ये मेरे 2 क्वेश्चन। एब्सोल्युटली राइट। पहली बात तो ये गर्व खुद पे होना कि हम बिहारी हैं, हमें इसको ओन करना होगा। मैं जब दूसरे राज्यों में कॉलेजेस इंटरेक्शन में जाता हूँ, बच्चों के साथ बातचीत करने जाता हूँ, कितने बच्चे आते हैं मेरे कान में आके मुझे बोलेंगे कि भैया हम भी बिहार से ही हैं। तो देन आई से कि इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, बोलो ना। नहीं, पर यहाँ किसी को पता नहीं है कि हम बिहार से हैं। अपनी पहचान छुपाते हैं। सबसे पहले हमें खुद पे ये गर्व करना होगा कि हम बिहारी हैं। मैं हर मन से बोलता हूँ और मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ। हमें जब तक हम अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, अपने फ्लॉज़ को जब तक हम ओन नहीं करेंगे, किसी पंजाब वाले को दिक्कत नहीं है, गर्व से बोलता है मैं पंजाबी, महाराष्ट्र के लोग गर्व से बोलते हैं मैं मराठी, बंगाल के लोग बोलते हैं मैं बंगाली। हमें अपने फ्लॉज़ को भी ओन करना होगा। हमें दिक्कत है भैया स बोलने में, हमें खुशी होती है, खुशी नहीं होती है, ये है। इन चीज़ों को जब तक हम ओन नहीं करेंगे, इन चीज़ों को लेकर जब तक हम खुद प्राउड नहीं करेंगे, ये भावना नहीं आएगी। और ये मैं बच्चों में मैं बोलता हूँ। बट हाँ, आप खुद बोलते रहें, बट आपका राज्य ही आपका साथ ना दे, उस व्यवस्था के लिए भी हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आपके राज्य की पहचान सिर्फ क्राइम से बनी रहे, आपके राज्य की पहचान गरीबी से बनी रहे, डेवलपमेंट ना होने की वजह से बनी रहे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बॉदर करेंगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया। साथ ही में क्योंकि आपने बाहर जो लोग गए हैं और जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, बिहारी डायस्पोरा इतना स्ट्रॉन्ग है, कई देशों में इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड इसीलिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की मैंने शुरुआत की है, इट्स कॉल्ड बीटो, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राजनीति में मैं मेरी सीमाएं समझता हूँ, कई चीज़ें सरकार के इंतज़ार में अगर आप रहेंगे तो दशकों लग जाएंगे। मैंने बीटो के माध्यम से बिहारी डायस्पोरा के उन लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं बट उनको नहीं पता। कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो कैसे करे। उन सबको एक मंच पर लाकर अपने राज्य के लिए करना चाहते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पहली यूनिवर्सिटी बिहार में खोल रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का कार्य उस पे चल रहा है, बहुत जल्द उसकी भी एक बड़ी अनाउंसमेंट बीटो के माध्यम से, जहाँ मैं सरकार का इंतजार नहीं कर रहा। और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये 2 इनिशिएटिव्स हम लोगों ने बीटो के माध्यम से लिए हैं, जहाँ पे बिहारी डायस्पोरा जो बाहर रह रहे हैं वो इसमें योगदान कर रहे हैं। बट राइटली सेड, मैं भी उस दिन की कल्पना करता हूँ जहाँ पलायन रोकने की बात हम लोग ना करें, जहाँ रिवर्स माइग्रेशन की बात करें। जो बिहारी बिहार से बाहर गए हैं वो भी मेरे प्रदेश वापस आएँ, उस दिन का भी मैं कल्पना करता हूँ और ये दिन हम बना के रहेंगे। मैं श्योर हूँ आई विल मेक इट। वैसे चिराग, in every part of India, we have our own way of speaking English. हम सबका प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन अलग तरह का है, डिस्टिंक्ट है। तो इसमें आपको एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक बार प्रणब मुखर्जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वो गए अमेरिका और कोई मीटिंग हुई जहाँ पे अपने मिसाइल्स की बात कर रहे थे। तो रॉबिन रेफल उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने मुझे कहानी बताई। तो उन्होंने कहा जब मीटिंग हुई तो द गाय फ्रॉम द एजेंसी, जो CIA वाला था मीटिंग में, उसने कहा, हे रॉबिन, दीज इंडियंस हैव मोर मिसाइल्स देन वी नो ऑफ। तो उसने कहा, नो, दे हैव द सेम टू, पृथ्वी एंड अग्नि। He said, but the minister was mentioning some other names. So she said, I explained to him that, he comes from a part of India which has its own pronunciation, and his pronunciation is heavily native. So she said, the guy at the agency said, hey, Robin, your Indians speak 16 dialects of English language. So all of us speak English differently. There is no issue there. There is no one. हमारे यहाँ तो भारतीय भाषाओं में भी हर कुछ किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। बिल्कुल अलग। मेरे खुद के राज्य में, एक ही राज्य में हम लोग मैथिली भी बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, मगही भी हम लोग बोलते हैं। तो वो है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। और इंग्लिश तो हम बिल्कुल ही हर जगह अलग तरीके से बोलते हैं। नमस्कार, मैं मोहन अनमोलू, यवतमाल विदर्भ से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ। चिराग जी, हम आपसे एक शिक्षा की बात हो गई, बिहार की बात हो गई, सब तरफ की बात हो गई। हम लोग चाहेंगे सबसे पहले पूरे भारत में जो बेरोजगारी है, इसके तरफ लोग बोलते हैं लेकिन बेरोजगारी का कोई हल नहीं निकल रहा।
जिसके वजह से काफ़ी बेरोजगार गलत संगत में जाके क्राइम में जाएंगे और कहीं जा रहे। बहुत बड़ा एक आबादी हमारा जो है वो क्राइम सेक्टर में जा रहा, या तो फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हुए जीवन उसका ये कर रहा। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, सर अब जब हम आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो इन बेरोजगारी के लिए सरकार हम लोगों के लिए क्या करने वाली है? और एक मेन महत्व का प्रश्न जो है कि हम लोग काफ़ी सालों से, पिछले 2010 से तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे। पासवान साहब जब मिनिस्टर थे उस समय से हमारे गुरु है, मैं भी उन्हीं के साथ में हूँ। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि भाई देश में युवा आयोग का गठन होगा। युवा आयोग का गठन होगा, जब से ये सोच और ये विचार हम लोगों ने लोगों के बीच में ले जाना शुरू किए, तो युवाओं की अपेक्षा बढ़ गई कि अब सरकार तो हमारी आ गई, क्योंकि चिराग जी भी मंत्री बन गए, सब चीज़ें सही है, तो अब ये युवा आयोग का गठन कब होगा? काफ़ी लोग युवा से प्राउड सेक्शन में जा रहे हैं, I उनका think एज खत्म हो रहा। I think कब सुविधा हमारी उपलब्ध होंगी युवा आयोग that, की? he can take that question and then Suketu and then we'll let him ये go. युवा आयोग, जब मैं नया नया सांसद बना था, इस विषय को मैंने बहुत प्रमुखता से, और मैं मानता हूं कि हमारे देश में हर किस्म के आयोग हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति, सारे आयोग हैं, बट ऐसे में युवा जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 65% ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, तो ऐसे में इसको एड्रेस करने के लिए एक राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की ज़रूरत देश को है। मुझे खुशी इस बात की है कि इसकी शुरुआत मैंने अपने राज्य से ज़रूर कर दी। मुख्यमंत्री जी से बात कर कर हम लोगों ने राज्य में युवा आयोग का गठन हम लोगों ने किया है, और मैं मानता हूं कि यही रेप्लिकेट होते होते आज नहीं तो कल देश में भी जल्द हम लोग राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हम लोग कर देंगे। और मैं मानता हूं कि इस आयोग के गठन से जिस समस्या का आप जिक्र कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बट ये भी ना एक परपेचुअल प्रॉब्लम इन द सेंस, आप जितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं आबादी भी उसी हिसाब से बढ़ती है। मेरे प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे 2014 में, उस वक्त वो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे। आज हम लोग 140 करोड़ से ज़्यादा हैं, एंड एज वी स्पीक हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हम बने हैं। ऐसे में ये बैलेंस करना दोनों चीज़ों को, जहाँ पे रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी क्रिएट हों, बट एट द सेम टाइम वो पॉपुलेशन भी वैसी रहे ताकि उसका समावेश हो सके। ग्रेजुअल है ये प्रोसेस, बट मैं मानता हूँ कि आज नहीं तो कल हम लोग इसमें भी सफल होंगे विद द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स जॉब गिवर्स। मुझे लगता है कि हम लोग उस दिशा में जितना ये कंसेप्ट बढ़ेगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। Suketu, the last question. So I'm very happy to meet you and hear you. My name is Suketu Shah. In fact, when you passed by, I wanted to say hello to you. Sorry. No, his father was Mr. Viren Shah, who Ramvilas knew very well, and he was leading light at that point of the BJP, and he's the one who brought the left and the BJP together to keep VP Singh in power. So once a week, he would host Mr. Advani and Harkishan Singh Surjeet to keep differences bridged. That was his father. No, and I also had the privilege of meeting your father on a number of occasions. So I wanted to remind, in fact, just tell you that the speech that Shekhar was speaking about, it was legendary. I mean, it was really heartwarming, and I wanted to tell you that what a great speech. And you don't hear speeches like that anymore in Parliament, and you were also referring to that. So the question that I wanted to ask you is, in a world, and particularly the Indian polity, which is, where caste is so important and now it's so precise, and in fact now AI is probably being used also to see how finely to cut and slice and to see how candidates should be chosen and how affiliations should be made. I'm very happy to hear that somebody as young and dynamic as you is going out and widening his footprint across India. So what is the message that you are giving, and what is it that you are bringing such that you will be able to increase your own popularity? If it is, are you again going to be relying on some of the old paradigms, or are you giving a new That's message? the last question, and he has the last word. As I said, I don't, to be very honest, I don't believe in the concept of caste and especially its involvement in politics. I believe देश में एक बहुत बड़ा फर्क अमीर और गरीब के बीच का है।
और जब आप गरीब एज अ जाति की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको हर जात पात धर्म मजहब के लोग आपको उसमें मिलेंगे. Until unless you don't target that section of the society जो आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, irrespective of the caste, religion, region that they come from, until unless आप उनको जोड़ने का काम नहीं करेंगे. As I said, there are two thoughts जिस पे मैं simultaneously मैं काम करता हूँ. एक, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक जाना. अगेन अभी जब मैं CSR की बात कर रहा था, मैं उसमें हम लोग सिर्फ शहरों में ही इस फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि कौन इतनी जहमत ले गांव में जाके उसको इस्तेमाल करने का. तो जब तक हम लोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, ये गांव शहर की दूरी कम नहीं होगी. और जब तक हम लोग अमीर और गरीब के बीच की दूरी को हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे. आज भी देश की बहुत थोड़ी सी आबादी के पास देश की बहुत बड़ी राशि है, और बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है. ऐसे में इसको ब्रिज करने के लिए मेरी लड़ाई जाति के कंसेप्ट पे नहीं है, धर्म के कंसेप्ट पे नहीं है, इस कंसेप्ट पे है. और जब मैं युवाओं की बात करता हूँ, मैं अक्रॉस कास्ट लाइन, अक्रॉस रिलीजन लाइन्स, अक्रॉस रिलीजन, मैं उनको एक साथ लेकर चलने की बात करता हूँ. मैं मानता हूँ हिंदू लड़के एक लड़की की भी वही समस्या है, मुस्लिम लड़के लड़की की भी वही समस्या है, अपर कास्ट लड़का लड़की, बैकवर्ड क्लासेस लड़का लड़की. युवाओं की अपनी समस्याएं हैं जो जाति पे आधारित नहीं होती हैं, एक्सेप्ट विथ फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ डिस्क्रिमिनेशन अगर उस आधार पे होते हैं. बट मैं समावेश की सोच के साथ बढ़ता हूँ. सो व्हेन यू आस्किंग मी, सो आई वांट टू टेक द यंगस्टर्स विद मी अक्रॉस दीज डिवाइडेड लाइंस. और उनके साथ मिलकर मैंने कहा, एक बड़ी आबादी है हमारे देश में युवाओं की, हम अगर एकजुट हो गए तो हम लोग बड़ी से बड़ी लड़ाई भी हम लोग जीतने की क्षमता रखते हैं. दिक्कत यह है कि इन युवाओं को भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा बांटने का प्रयास किया जाता है. बट एकजुट युवा अगर हुआ तो ये बहुत बड़ी ताकत है. I think with this we have to call an end to the evening because he has to go. The print off the cuff. Presenting partner Edelweiss. Exchange partner NSE. Experience partner The Quorum. Pouring partner Six Brothers Mahura.